I welcome you all to Inspired Corner. We are reading fifth chapter, The Summit Within, written by H.P.S. Ahluwalia from Honeydew. In previous sessions, we read part 1 and part 2 from this chapter. In that sessions, we read Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In this lesson, he tells us how he felt as he stood on the Everest. Standing on the Everest, Major Ahluwalia felt very humble. Physically, he was very tired. Instead of being very happy, he was jubilant and sad. He was not sure of the reason. He wondered if this sadness was because now there was no higher peak to climb. Ahluwalia says that after climbing Everest, he felt a deep sense of joy. This joy was to last the rest of his life. He also felt thankful to God. Ahluwalia had climbed a summit, but he thought of another summit. This was the summit of mind. He came to the conclusion that in order to climb a summit, a person needed three qualities: in endurance, persistence, and willpower. Ahluwalia says that a question arises why he chose to climb Everest. He says that the first reason is that he was always loved mountains. Everest is the highest and the mightiest of them all. It is a great struggle against rock and ice. So, after climbing this summit, there is a joy of having done something which only a few can do. L- Now, let's start part 3. Looking around from a summit, you tell yourself that it was worthwhile. शिखर की चोटी से चारों ओर देखते हुए आप स्वयं से कहते हैं यही करना ठीक था. Other silvery peaks appears through the clouds. बादलों में से चांदी की तरह चमकती अन्य चोटियां दिखाई देती हैं. If you are lucky, the sun may be on them. यदि आप भाग्यशाली हैं तो उन पर धूप पड़ रही होती है. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. चारों ओर की चोटियां ऐसे लगती हैं मानो आपके शिखर के गले में हीरों का जड़ा हार हो. मतलब एवरेस्ट के गले में हीरों का जड़ा हार हो. बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस. नीचे दूर दूर तक फैली ढलानदार घाटियां दिखाई देती हैं. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. किसी पर्वत की चोटी से नीचे देखना एक रोचक एवं उपयोगी अनुभव है. इनॉबलिंग एंड इनरिचिंग इसका मतलब होता है कि रोचक और उपयोगी. You bow down and make your obeisance to whichever God worship. आप झुककर अपने इस देव को प्रणाम करते हैं. I left Everest a picture of गुरु नानक. मैं एवरेस्ट पर गुरु नानक देव का चित्र छोड़ आया. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. रावत ने देवी दुर्गा का चित्र छोड़ा. फूड डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा. फूड डोरजी ने भगवान बुद्धा का स्मृति चिन्ह छोड़ा. रेलिक ऑफ बुद्धा मतलब बुद्धा का स्मृति चिन्ह. रेलिक मीन्स
समृद्धि चिन्ह। एडमंड हेनरी had buried a cross under a cairn, a heap of rock and stones in the snow. एडमंड हेनरी ने बर्फ में पत्थरों के ढेर के नीचे क्रॉस दबा दिया। कैरन मीन्स अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, मतलब पत्थर और जो पहाड़ चट्टानों का जो ढेर था, ढेर होता है उसे बोलते हैं कैरन। These are not symbols of conquest but a reverence. ये विजय के नहीं बल्कि आदर और श्रद्धा के प्रतीक हैं। रेवरेंस का मतलब होता है आदर और श्रद्धा। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंज यू कंप्लीटली। शिखर पर विजय पाने का अनुभव आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। अब मतलब जो आपके अंदर की भाव है इस सबको ये चेंज कर देता है, आपके सोचने का ढंग बदल जाता है। देयर इज अनदर समिट। अब ऐसे ही एचपीएस अहलूवालिया जी जब एवरेस्ट पर पहुंचे तो उनके अंदर भी जो विचार थे, उनकी जो भावनाएं हैं, उनमें भी चेंजिंग आ गई। अब क्या आई वो उसके बारे में बताते हैं। देयर इज अनदर समिट, एक और शिखर भी है। इट इज विद इन योर सेल्फ, यह आपके अंदर है। इट इज इन योर माइंड, यह आपके मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर अपना ही एक पर्वत शिखर लिए होता है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. अब क्या बोल रहे हैं वो, उसे स्वयं के बारे में पूर्ण ज्ञान पाने के लिए उस शिखर पर पहुंचना होता है। फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ मतलब फुलर मतलब अपने बारे में पूरा ज्ञान, पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। इट इज फियरफुल एंड अनस्केपेबल, यह डरावना होता है और इस पर भी विजय पाना कठिन होता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम बाय एनीवन एल्स, उस पर कोई अन्य व्यक्ति विजय नहीं पा सकता। मतलब इस पर विजय किसने पानी है, स्वयं को ही पानी है। कोई दूसरा व्यक्ति जो हमारे अंदर का समिट होता है उस पर विजय नहीं पा सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, स्वयं आपको ही यह कार्य करना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज akin to the act of climbing the mountain within. अब वो क्या बोलते हैं, किसी बाहरी पर्वत पर चढ़ने का प्रयास अपने अंदर के शिखर पर चढ़ने के प्रयास के समान ही होता है। मतलब आप अपने अंदर जो आपके अंदर जो विचारों का पर्वत शिखर है, इस पर पहुंचना, अपने आप को पूर्ण रूप से जानना भी इक्वल टू क्या है, फिजिकली किसी माउंटेन के समिट पर चढ़ने के बराबर होता है। दोनों बराबर होते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों की चढ़ाइयों का प्रभाव एक समान होता है। whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will be certainly change you. आप जिस भी पर्वत पर चढ़ते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या भावनात्मक एवं आध्यात्मिक, यह चढ़ाई आप में निश्चित रूप से परिवर्तन ला देगी। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, यह आपको संसार तथा स्वयं अपने बारे में बहुत कुछ सिखा देगी। I venture to think that my experience as an Everester has provided me
with the inspiration to face life's ordeals resolutely. मैं ये सोचता हूँ कि एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की कठिनाइयों, लाइफ्स ऑर्डिल्स रेसोल्यूटली मतलब जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्ण सामना करने की प्रेरणा दी। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। पर्वतारोहण एक सार्थक अनुभव था। वर्थ वाइल एक्सपीरियंस मतलब सार्थक अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल। और अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना भी उतना ही सार्थक अनुभव है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। आंतरिक शिखर पर्वत संभवतः एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। थैंक यू एवरीवन। I hope you like my this video. Thank you very much.